Hello children, once again I welcome all of you to my YouTube channel. Today we'll be discussing chapter number 6 of the supplementary reader class 9 CBSE, and the title of the chapter is Weathering the Storm in Ersama, written by Harsh Mandar. So before we go deep into this chapter, let's discuss about the writer first of all. So, my dear children, the writer Harsh Mandar was born on 17 April 1955 in Shillong, and he is an Indian author, teacher, as well as a social activist also. He generally works with people who are homeless or the survivors of cyclone affected areas or orphans. So this is just a brief intro about the writer. And now we'll discuss this chapter in detail. The cyclone that hit Orissa in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? So, my dear children, in this story, first of all, before we go deep into this chapter, let us discuss about something, that happened in the month of October 1999, and basically a cyclone hit Orissa very badly. What do you mean by cyclone? Cyclone is actually, strong winds that often brings heavy rain. And, if we talk about the power, or in other words, the velocity of the wind, it would go up to 350 kilometers per hour. ठीक है, लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, और उसके साथ साथ ज़ोरदार बारिश भी होती है. दैट इज़ कॉल्ड साइक्लोन. इन हिंदी वी कॉल इट चक्रवात. ओके, सो व्हाट हैपेंड, सम थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाइड, और एंड हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस वर टोटली डिस्ट्रॉयड. पूरी तरीके से जो है बर्बाद हो गए थे सैकड़ों गांव. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of a house. So there was a boy and his name was Prashant. And for 2 dangerous nights, dreadful nights means dangerous, fearful nights, that boy was left alone on the roof of a house. Marooned means to left alone. Okay, अकेले वहाँ पर अलग थलग हो जाना बाकी सब लोगों से, एक अकेले जगह पर पड़े रहना. तो एक घर की छत पर प्रशांत ने जो है 2 रातें, वो भी भयानक रातें, उसने जो है उस छत पर बिताई. On the 3rd day, he decided to go to his village. Did he find his family? And on the 3rd day, finally, Prashant decided to go to his village. Did he find his family? अब उसका जो पूरा परिवार है वो तो उस भयंकर साइक्लोन में फंस गया है. अब क्या उसका परिवार बचा है, क्या उसको उसकी परिवार वालों से मुलाकात होती है? This is what we are going to study in this chapter. And the title of this chapter, my dear children, Weathering the Storm in Ersama. Weathering means to survive or to endure. Okay, in Hindi आप कह सकते हो झेलना और उस चीज़ का मुकाबला करना, फेस करना उस चीज़ को. That is called weathering the storm in Ersama. Or Ersama is basically a small village in the state of Orissa. Okay, it is this village is situated on the coastal area. Okay, on 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Ersama, a small town in coastal Orissa, some 18 kilometers from his village, to spend the day with a friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. So what happened on 27th October 1999, 7 years after Prashant's mother's death, Prashant went to the block headquarters of Ersama. Block headquarters means, where the government
headquarters were, you know, situated. There he went, okay, and actually one of his friends was there, you know, so he decided to spend some time with his friend, and that area was some 18 kilometers from his village. So 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत जिनकी माँ गुजरे हुए 7 साल हो चुके थे, वो एरसामा के ब्लॉक हेडक्वार्टर्स जो हैं, जो उनके गांव से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर वो गए अपने दोस्त के साथ समय बिताने के लिए। और उन्होंने ये सोचा कि सुबह से शाम तक अपने दोस्त के साथ रहूँगा और शाम को जो हूँ मैं लौट कर वापस आ जाऊँगा। बट वॉट हैपेंड इन द इवनिंग, ए डार्क एंड मेनेसिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड। बट वॉट हैपेंड, जैसे ही अंधेरा होने लगा, शाम होने लगी, एक बहुत ही भयंकर और काले घने बादल छाने लगे और एक ज़ोरदार तूफान जो है, ऐसा लगने लगा तूफान का अंदेशा जो है होने लगा। नाउ ऑन योर स्क्रीन्स यू कैन सी दिस मैप। इस मैप में आप देख सकते हैं, दिस इज़ दैट रेड स्पॉट इज़ कॉल्ड एरसामा। इट इज़ इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा और इट इज़ वन ऑफ द कोस्टल एरियाज़ ऑफ उड़ीसा। और ऐसे जो विलेजेस होते हैं, ऐसे जो जगह होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ पर होते हैं, स्पेशली जो सी के बगल में या नज़दीक में जो होते हैं, वहाँ पर ऐसे साइक्लोन्स, फ्लड्स, ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। बेसिकली फ्लड्स तो नहीं, बट बेसिकली साइक्लोन के खतरे ज़्यादा रहते हैं ऐसी जगहों पर, ठीक है। Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. So जो हवाएं हैं वो इतनी तेज़ चलने लगी और वो हवाओं की जो रफ्तार थी, और हवाओं में एक प्रकार का फ्यूरी, फ्यूरी मीन्स एंगर, गुस्सा था। ऐसा लग रहा था हवाओं में एक प्रकार का गुस्सा है और इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि प्रशांत ने ऐसा कभी पहले नहीं देखा था। विटनेस मीन्स कभी उसने ऐसी नज़ारा पहले नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were uprooted and crashed to the earth. And there was heavy and continuous rain. Incessant means continuous rain. And there was complete darkness. Even the ancient trees, जो बहुत सालों से पुराने पुराने जो पेड़ हुआ करते थे, they were uprooted. वो जड़ से उखड़ गए. And they were crashed to the earth. और वो सब धरती पर गिर गए. Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. Okay, screams rent the air, इसका मतलब होता है हवाओं में हर तरफ लोगों की चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी ना। स्क्रीम्स रेंट द एयर मीन्स हवा में हर तरफ लोगों की चीखने की आवाज़ गूंज रही थी, और जो लोग थे और जो घरें थे वो सब उस पानी के बहाव में बड़ी तेजी से बह जा रहे थे। स्विफ्टली मीन्स वेरी क्विकली, वॉश्ड अवे मीन्स बह जाना। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस नेक डीप and the condition was so bad that you know the water literally swirled means twisted, ठीक है। पानी जो है ऐसे भवंडर की तरह जो है इनके दोस्त के घर के अंदर भी प्रवेश करने लगा। पानी की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी, हवा की रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि आम दरवाजे खिड़कियां उस हवाओं को रोक ही नहीं पा रहे थे, और पानी जो है, पानी का जो बवंडर है, पानी जो है घर के अंदर भी जो है इनके फ्रेंड के घर के अंदर प्रवेश करेगा। और पानी कहाँ तक पहुँच गया? नेक डीप, ओके, गर्दन तक पानी पहुंच गया। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of the wind's velocity of 350 kilometers per hour. But the best part was, you know, his friend's house, you know, that building was made of brick and mortar. Brick means what? You know, ईटा, and mortar means what? चूना। तो वो चूना और ईंटे का बना हुआ घर था, मजबूत घर था कहने का मतलब, यू नो। और मजबूत घर था इसीलिए वो जो 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी उसको काफ़ी हद तक उस घर ने क्या कर लिया, फेस किया, झेल लिया उस घर को, ठीक है। सर्वाइव मीन्स कि उसको फेस करना, डिवास्टेशन मीन्स वो डिस्ट्रक्शन, हवा की वो जो बर्बादी है उसको उस घर ने सह लिया। अगर नॉर्मल जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो कच्चे मकान थे, वो सब तो बह गए थे। But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses. But the another biggest problem was, you know, the trees, the uprooted trees was literally falling on the house. और जो पेड़ उखड़ उखड़ कर जो जड़ से बड़े बड़े
बड़े बड़े पेड़ उखड़ के क्या हो रहे थे, उनके घर के ऊपर गिर रहे थे। वो एक बहुत बड़ी समस्या और चिंता की बात थी, एंड दैट वाज लिटरली द मैटर ऑफ मेन कंसर्न फॉर द फैमिली मेंबर्स। समटाइम इन द मिडिल ऑफ नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, आधी रात में कभी पेड़ गिर रहे हैं, यहाँ तक कि उस घर के जो दीवार हैं, जो छत हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचा था उन पेड़ों के गिरने की वजह से। The crazed destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds has reduced somewhat by the next morning. The crazed destruction means the crazy destruction, जिस प्रकार से तबाही हो रही थी, मतलब एकदम पागलपन वाली तबाही थी हर तरफ। और वो रॉट, WROUGHT, रॉट मीन्स मेड बाय, और ये तबाही किसकी वजह से आई थी? बाय द साइक्लोन, ठीक है, इट वाज मेड बाय द साइक्लोन। एंड द सर्ज, सर्ज मीन्स व्हाट डू मीन बाय सर्ज? सर्ज मीन्स हिंदी में हम कहते हैं उठती हुई लहरें, ओके, जो ऊंची ऊंची ऊपर उठती हुई लहरें हैं, दैट इज कॉल्ड सर्ज ऑफ द ओशियन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर्स, मीन्स अगले 36 घंटे तक जोरदार बारिश होती रही, और ये जो समुद्र की जो लहरें हैं वो इतने ऊपर ऊपर तक उठ रहे थे, और इतना ज़्यादा तबाही हो चुका था 36 घंटों में। Although wind speeds had reduced somewhat by the next morning, but by the next morning finally the speed of the wind was reduced, हवाओं की जो रफ्तार थी उसमें थोड़ी कमी देखने को मिली। To escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family had taken refuge on the roof. So finally, in the beginning itself, we saw that the water was up to the neck, गर्दन तक पानी आ गया था। तो पानी की चूंकि पानी का जो स्तर बढ़ रहा था, तो पूरा परिवार जो है, प्रशांत के फ्रेंड का जो पूरी फैमिली थी, उन्होंने और प्रशांत ने सब ने सोचा कि हम छत पर जाकर, रिफ्यूज मीन्स शरण लेते हैं, छत पर चल के ना, रूफ मीन्स व्हाट, छत, छत पर चल के हम वहीं पर रहा जाए। Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse of the devastation wrought by the super cyclone in the grey light of the early morning. और जब सुबह, ओके, ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग मीन्स भोर का समय है ना, सुबह सुबह जो भोर का समय होता है तो वो थोड़ा ग्रेइश कलर का होता है ना, एकदम उजाला भी नहीं होता और एकदम अंधेरा भी नहीं रहता, इसलिए उसको ग्रे कलर कहा गया है। उस समय जब छत पर, प्रशांत जब छत पर गया और उसके बाद उसने जो नज़ारा देखा, ग्लिम्स, ग्लिम्स मीन्स वो नज़ारा, किसका नज़ारा? तबाही का नज़ारा, रॉट बाई, और तबाही किसके द्वारा मची थी? सुपर साइक्लोन के द्वारा, उसको वो भूल नहीं सकता। ओके, क्या था? A raging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only fractured cement houses still stood in a few places. हर तरफ जो गंदगी पानी की ना, पानी का कलर कैसा था? ब्राउन कलर का पानी, दूर दूर तक जहाँ तक नजरें जा रही थी ब्राउन वाटर देखने को मिल रहा था। और जब जगहों जगहों पर जो है टूटे हुए मकान के जो हैं, बस टूटे हुए मकान दिख रहे थे जो कि जगहों जगहों पर मौजूद थे, बाकी सब कुछ तहस नहस हो चुका था। ब्लॉटेड एनिमल carcasses and human corpses floated in every direction. Blotted means फूले हुए जानवर जब पानी के अंदर काफ़ी समय से रह लेते हैं। carcasses means what? कंकाल, जानवरों के कंकाल और लाशें। ह्यूमन कॉप्सेस मीन्स इंसान के जो लाशें हैं वो पानी में हर तरफ तैर रहे थे, ठीक है। ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, इवन द ह्यूज एंड ओल्ड ट्री, जो पुराने और बहुत बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे वो सब भी गिर चुके थे। This is the photo you can see, on this, in this picture, the carcasses of animals, even the human corpses are lying here and there, and this brown sheet of water everywhere, and the houses, damaged houses you can see in this picture. ऐसी कुछ स्थिति बन गई थी उस समय। Two coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. और दो नारियल के पेड़ जो हैं उनके छत पर गिर गए थे, और basically this was a blessing in disguise. Okay, blessing in disguise means an apparent misfortune that eventually has good results, है ना। कुछ गलत
या कुछ बुरी चीज़ में कुछ अच्छी चीज़ निकल आए, तो उसे कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अब घर के ऊपर पेड़ों का गिरना अच्छी चीज़ तो है नहीं, लेकिन पेड़ों के गिरने से एक फ़ायदा क्या हो गया कि वो कौन से पेड़ थे, वो नारियल के पेड़ थे। और चूंकि नारियल के पेड़ थे और उनमें नारियल लगे हुए थे, तो परिवार के लिए एक तरीके से फ़ायदेमंद साबित हुआ। क्या साबित हुआ? उन्होंने उन नारियल जो पेड़ में लगे थे, उन नारियल को उन्होंने जो है तोड़कर खाया और कुछ दिन तक अपनी भूख को मिटाई। तो कहने का मतलब कुछ बुरा हुआ, लेकिन उस बुराई में से भी कुछ अच्छाई निकल कर आई। दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो इसकी वजह से क्या हुआ कि कुछ दिन तक कम से कम जो है उनका पेट भरता रहा उन नारियल के वजह से। फॉर द नेक्स्ट 2 days प्रशांत sat huddled with his friends family in the open on the rooftop. Huddled means to sit close, very close, side by side, सट कर बैठना है, चिपक कर बैठना है, so for the next 2 days Prashant spent that 2 days with his friends, family members on the open rooftop. खुले में बैठना, ठंड लग रही है, बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, किसी तरह 2 दिन उन्होंने वहाँ पर बिताया। दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेसेंट रेन, और वो जम जा रहे थे उस ठंड में और उस कंटिन्यूस रेन में। द रेन वाटर वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर्स, और प्रशांत जो रो भी रहा था तो वो बारिश जो है उसके आंसुओं को बहा दे रही थी। द ओनली थॉट दैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन। द ओनली थिंग दैट वॉज गोइंग ऑन इन हिज माइंड, वही एक चीज़ जो उसके दिमाग में बार बार चल रही थी कि वॉट अबाउट माई फैमिली, मेरा परिवार क्या हुआ, क्या मेरा परिवार इस भयंकर सुपर साइक्लोन में बच पाया कि नहीं, क्या मेरे घर के सदस्य सब सही सलामत है कि नहीं। Was he to be bereaved once again? This question was also going on in his mind. क्या एक बार फिर से मैं अपने किसी परिवार वाले को खोने जा रहा हूँ? Already in the beginning we have seen that his mother is no more. प्रशांत की मदर की डेथ बहुत पहले ही हो चुकी थी, some 7 years, 7 साल पहले ही, इस घटना के 7 साल पहले उनकी मदर की डेथ हो गई थी। और अब उनको लग रहा था कि अब कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और बाकी अपने फैमिली मेम्बर्स को भी खो दूँ। bereaved means somebody who lost his family members or relatives. Okay. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. So spending 2 more days there, finally spending 2 days there for Prashant was like spending 2 years. 2 दिन 2 साल की तरह प्रशांत को लग रहा था। लेकिन 2 दिन के बाद बारिश थोड़ी सी सीज्ड मतलब कम हो गई, रुक गई कह सकते हैं आप, और रेन वाटर स्लोली बिगैन टू रिसीड, घटना शुरू हो गया, और जो बारिश का पानी है धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, एंड नाउ प्रशांत वॉज वेरी डिटरमिन्ड, ही वॉज हैविंग दिस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दैट ही वुड गो एंड ही वुड सर्च फॉर हिज फैमिली मेंबर्स, कि वो जाके अपने परिवार वालों को खोजेगा। बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज friends, family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But as we discussed it earlier, हालात बहुत ख़राब थे, लाशें चारों तरफ थी, जानवर के जो कैसेस चारों तरफ पड़े हुए थे। ऐसे समय पर जो प्रशांत के फ्रेंड के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रशांत से कि तुम कुछ समय और यहाँ पर रुक जाओ, मत जाओ अभी, क्योंकि अभी भी खतरा टला नहीं है। बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, बट प्रशांत वॉज वेरी डिटरमिन्ड बिकॉज ही वॉज literally very concerned about his family members. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood waters. He equipped मतलब उसने अपने पास एक हथियार रख लिया। वो हथियार क्या था? long sturdy stick. स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत, उसने एक मजबूत लाठी ले ली, ठीक है, और उसके बाद उसने 18 किलोमीटर की लंबी सफ़र पर वो निकल गया। एक्सपीडिशन मीन्स व्हाट? एक लंबा सफ़र, एक लंबी जर्नी। और कहाँ में, किस में से होकर उसको जाना था? थ्रू द स्वोलन फ्लड वाटर्स। स्वोलन मीन्स फूला हुआ कहने का मतलब पानी का जो स्तर था इतना ज़्यादा बढ़ गया था हर जगह, तो उसमें से होकर उसको जाना था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, एंड दिस वॉज समथिंग he would never forget. He constantly had to use his stick to locate the road to determine where the water was most shallow. And with the help of that stick, Prashant used to find out where exactly the road was.
and literally with the help of that stick he was locating the road, and he was literally moving ahead, and with the help of that stick he could easily find out whether the water was shallow or not. shallow का मतलब होता है कम पानी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कहीं पे बहुत गहरा तो नहीं है, जहाँ पर गहरा है तो वो वहाँ से हट जाता था, और जहाँ पे कम पानी है उस ओर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता था। ठीक है, शैलो का मतलब होता है जहाँ पे पानी का स्तर कम हो, बहुत ज़्यादा गहराई ना हो। At places it was waist deep, at progress was slow, at several points he lost the road and had to swim. And at certain places the water was up to his waist, कमर तक पानी थी, कहीं कहीं पर उसको बहुत धीमे चलना पड़ता था। At several points he lost the road, कई बार तो वो जो है सड़क रास्ता भटक गया, he had to swim, उसे तैरना पड़ा। After some distance he was relieved to find two friends of his uncle who were also returning to their village. So that was a good thing for him. Finally what happened, उनको जो है अपने अंकल के दो दोस्त लोग भी मिल गए, वो भी जो अपनी गांव की ओर जा रहे थे, तो कुल मिला के 3 लोग हो गए, तो थोड़ा सा जो है एक सुकून मिला उनको। ओके, दे वर बिट हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर। देन व्हाट हैपेंड, ऑल दीज 3 स्टार्टेड मूविंग towards their village. As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre. Waded means as they were going through, okay, as they were पानी को चीरते हुए जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जो नज़ारा था वो और ज़्यादा भयंकर और डरावना होता जा रहा था। मैकेबर, मैकेबर मीन्स वेरी डेंजरस, ओके, वेरी फ्राइटनिंग सीन, बहुत ही भयंकर और खतरनाक नज़ारा देखने को मिल रहा था। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज, men, women, children and carcasses of dogs, goats and cattle that the current swept against them as they moved ahead. अब पानी का चूंकि बहाव भी है, उसके विपरीत ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, कई बार लाशें आ रही हैं, अब उन लाशों को हटाना पड़ रहा है, किनारे करना पड़ रहा है, बच्चे हैं, औरतें हैं उसी में, और बहुत सी कई जानवर, मरे हुए जानवर सामने आ रहे हैं, उनको भी किनारे करना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जो है किनारे करते हुए आगे बढ़ना, इट वॉज वेरी 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 डिफ़िकल्ट टास्क फॉर प्रशांत and his uncle's friends. In every village that they passed they could barely see a house standing. और इन 18 किलोमीटर के सफ़र में जितने भी गांव बीच में पड़े, शायद ही किसी गांव में उनको कोई घर दिखा होगा, पूरा का पूरा गांव जो है बह चुका था। Prashant now wept out loud and long. He was sure that his family could not have survived this catastrophe. So finally Prashant was very sure, प्रशांत को पूरा अंदाज़ा हो गया कि मेरा परिवार तो नहीं बच सकता, मेरा परिवार पक्का जो है इस तबाही में जो है कहीं ना कहीं मेरा परिवार भी जो है तबाह हो गया है। एंड ही वॉज लिटरली क्राइंग, वो बहुत रो रहा था प्रशांत। कैटास्ट्रफी, कैटास्ट्रफी मीन्स हैवी 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 डिस्ट्रक्शन, बहुत ही ज़बरदस्त तबाही को कहा जाता है कैटास्ट्रफी। Eventually प्रशांत reached his village कालीकुड़ा, and finally what happened, प्रशांत कहाँ पहुँचे, अपने गांव कालीकुड़ा पहुँचे। His heart went cold. Where their home once stood, there were only remnants of its roof. और जब अपने गांव पहुँचा तो उसने दूर से अपने घर की ओर देखा, जहाँ पर एक समय उसका घर हुआ करता था, अब वहाँ पर घर नहीं था, सिर्फ छत का कुछ भाग दिख रहा। रेमिनेंट्स मीन्स बचा हुआ कुछ हिस्सा दिख रहा था। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कॉट, मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री जस्ट विजिबल अबव द डार्क वाटर्स। और उनके घर के जो सामान हैं, ठीक है, चाहे वो बर्तन हो चाहे कुछ भी हो, वो जो है पेड़ों की टहनियों में लटके हुए, इधर उधर टेढ़े मेढ़े हुए, कुछ फटे पुराने ऐसी चीज़ें जो हैं इधर उधर बिखरी पड़ी हुई थी, वो बस वही सब प्रशांत देख रहा था। Young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. तो प्रशांत ने सोचा कि अब मैं अपने परिवार वालों की खोज करूंगा, तो मैं कहाँ जाऊं? I would go to Red Cross shelter. What is Red Cross shelter? आपको पता होगा कि जब ऐसी कोई तबाही आती है तो ये जो UN का जो एक संस्था है, रेड क्रॉस सोसाइटी, जो कि एक प्रकार से जो है गरीबों की मदद करना, सहारा देना लोगों को, तो वो वहाँ पर गया कि शायद हो सकता है मेरे परिवार वाले वहाँ पर गए हों। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. और सबसे पहले उसने वहाँ पर किसको देखा? उस भीड़ में अपनी नानी को देखा, ग्रैंड मदर ना, मैटरनल ग्रैंड मदर। वीक विथ हंगर शी रश्ड टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रिमिंग। इट वॉज अ मिरेकल दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर
dead. अब जैसे ही नानी ने जो है प्रशांत को देखा, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो दोनों लिपट के खूब रोए, क्योंकि ये एक चमत्कार था नानी के लिए भी, क्योंकि सब ये सोच रहे थे कि प्रशांत जो है अब इस दुनिया में जीवित नहीं रहा. Quickly, word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. But by the grace of God, each and every members of his family were safe. और खबर जैसे ही पहुंची, प्रशांत आया तो बड़ी तेज़ी से खबर फैली और उनके परिवार के बाकी सदस्य भी सब आ गए. कुल मिला के परिवार के सारे लोग सुरक्षित थे और सब ने बड़ी राहत की सांस ली, एक दूसरे से गले मिले. प्रशांत एंक्शियसली स्कैन्ड द मोटले बैटर्ड ग्रुप. अब प्रशांत ने जो सबसे पहले जो है उसने सब लोगों को बड़े ध्यान से देखा, है ना. एंक्शियसली मीन्स थोड़े से उदास होकर. मोटले, व्हाट डू मीन मोटले? मोटले मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. अब आपको पता है कि जो राहत शिविर होता है, शेल्टर्स जो होते हैं, राहत शिविर, वहाँ पे तरह तरह के लोगों को रखा जाता है. तो उसने देखा कोई गरीब है तो कोई अमीर है, या फिर कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई जवान है, महिला है, आदमी हैं, बच्चे हैं, सारे हर प्रकार के लोग वहाँ पे मौजूद हैं. मोटले का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल. बैटर्ड ग्रुप, बैटर्ड ग्रुप मीन्स डैमेज्ड ग्रुप, पूरी तरीके से जो बर्बाद हो गया हो, ऐसे लोगों का ग्रुप था. किसी ने अपनी माँ को खो दिया, किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने पिता को खो दिया. वो सारे लोगों को बड़े ध्यान से जो है प्रशांत ने देखा और काफ़ी उदास भी था प्रशांत उनको देखकर. हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर. बट द बेस्ट पार्ट वॉज कि प्रशांत के जो हैं अंकल, जो उनके जितने भी चाचा और जो भी सिस्टर्स, वो सभी लोग सही सलामत थे. बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, एज इट टुक इन द डेस्परेट सिचुएशन इन द शेल्टर, ही डिसाइडेड टू गेट अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट हैपेंड, ही सॉ दैट the people in this shelter were literally getting desperate and they were literally becoming hopeless. उसने देखा कि इस राहत शिविर में जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सब उदास होते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं, इनके ऊपर जो है उदासीपन मंडरा रहा है. अब इसने सोचा है कि मुझे कुछ करना है और मुझे इस हालात पर काबू पाना है. टू गेट ए ग्रिप मतलब इस हालात पर काबू पाना. ही सेंस्ड ए डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपॉन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर. और वहाँ पे उस राहत शिविर में कितने लोग थे? लगभग 2500 लोग थे. और उसने देखा कि इन 2500 लोगों के ऊपर उदासी छा रही है और ये उदासी इतनी खतरनाक है कि इन लोगों की भी जान ले सकती, क्योंकि किसी ने अपने परिवार को खोया है, किसी ने अपना घर बार को खो दिया है. तो ऐसे समय पर दुख बहुत ज़्यादा था. 86 lives were lost in the village. Total 86 people, they died, in that cyclone, especially from that village. All the 96 houses had been washed away. और उनके जो गांव में, प्रशांत के गांव में टोटल 96 घर थे, 96 घर, वो पूरे के पूरे घर बह चुके थे. It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. फाइनली व्हाट हैपेंड, 4 दिन हो गए उस राहत शिविर में रहते हुए और 4 दिन से वो लोग क्या कर रहे थे? जो नारियल हैं उसी को खाकर जी रहे थे. लेकिन अब वो नारियल भी कम पड़ रहे हैं धीरे धीरे. टुमल्ट ऑफ पीपल, टुमल्ट ऑफ पीपल मीन्स कन्फ्यूजन ऑफ पीपल. कन्फ्यूजन ऑफ पीपल मीन्स बड़ी संख्या में लोग, अफरा तफरी का माहौल है. ऐसे समय पर हर एक इंसान भूखा है, सबको भोजन चाहिए. ऐसे समय पे बहुत ही कम मात्रा में अब जो है नारियल बचे हुए थे. तो अब क्या करें? ओके, Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village if no one else did. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब प्रशांत जो कि लगभग 19 साल का था, वो आगे आया. उसने कहा कि मैं इस गांव के लीडर के तौर पर मैं काम करूंगा, अगर कोई आगे नहीं आ रहा तो मैं आगे आऊंगा. उसके बाद उसने क्या किया? एक ग्रुप बनाया उसने और कुछ लोगों को लिया, कुछ यंग लोगों को लिया, कुछ बड़े बुजुर्गों को भी लिया उसने अपने ग्रुप में. उसके बाद जो वहाँ जो बिजनेसमैन हुआ करते हैं, जो वहाँ पर जो दुकानदार लोग हुआ करते वहाँ पे थे, जिनके पास चावल बचा हुआ था बड़ी संख्या में, उनको मजबूर किया कि आप जो हैं, आपके पास जो चावल बचा हुआ वो हमको दीजिए ताकि हम लोग उसको खा सकें. This time the delegation succeeded and returned triumphantly, wading through the receding waters with food for the entire shelter. उसके बाद जब ये लोग
गए और वहाँ पर जो व्यापारियों से मिले और उनसे कहा, ये कौन से व्यापारी हैं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये वो व्यापारी हैं जो शायद पक्के मकान में रहा करते थे और जिनको इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो है तबाही नहीं झेलनी पड़ी, और शायद उनका घर कुछ हद तक नुकसान हुआ होगा लेकिन फिर भी वो सब सुरक्षित थे। तो उनके पास जाकर जो है प्रशांत और प्रशांत के साथ और भी कुछ लोग मिलकर उन्होंने मजबूर किया कि आप जो है चावल हमें दीजिए ताकि हम उसे खाएं और हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। और अच्छी बात ये थी कि जो है उनको वहाँ पर सफलता मिली और वो आए, और उसके बाद क्या हुआ, नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग, लेकिन किसी ने भी जो है इस बात का ध्यान नहीं दिया कि कहीं ना कहीं वो चावल भी सड़ रहा था। रॉटिंग मीन्स सड़ रहा था, क्योंकि बारिश में सब कुछ बर्बाद हो गया था तो चावल भी काफ़ी हद तक नुकसान हो गया था। लेकिन चूंकि भूख इतनी ज़्यादा थी कि वो सड़े हुए चावल भी उनको जो है अच्छे लग रहे थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट ए रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। अब जो है जो टहनियाँ, टूटी हुई टहनियाँ गिरी हुई थी, उनसे आग जलाने की कोशिश की, लेकिन आपको पता है कि गीली लकड़ी में आग तुरंत नहीं लगता। रिलक्टेंट मीन्स वॉट, नॉट रेडी टू बी लिट, ठीक है, जो जलने के लिए तैयार ना हो, दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंट। ऑन विच टू कुक द राइस, अब चावल कैसे पकाया जाए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। हालांकि किसी तरीके से उन्होंने आग जलाया और 4 दिन में पहली बार उस राहत शिविर में जितने भी लोग थे उन्होंने पेट भर कर जो है खाना खाया। ठीक, अभी तक तो नारियल का पानी पीकर जी रहे थे, अब जाके उनको कुछ खाने को मिला। हालांकि वो चावल भी कैसा था, दैट वाज रॉटिंग, सड़ रहा था। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वोमिट एंड फ्लोटिंग carcasses and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. Okay, so now finally what happened, प्रशांत ने कुछ लोगों की टीम बनाई, यूथ लोगों की टीम बनाई, वॉलंटियर्स की टीम बनाई। अब काम ये था कि राहत शिविर में गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, वहाँ पे उल्टी हो रही है, वहीं पर यूरिन पड़ा हुआ है, वहीं पर जो है जानवरों की जो हैं मरे हुए जानवर पड़े हुए हैं। अब वो सब की सफाई करना ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, तो उसने जो है सब सफाई करना शुरू किया, और जो लोग जिसके हाथ पैर टूट गए थे, जो जख्मी लोग थे, उनका इलाज करना उन्होंने शुरू किया। ऑन द 5th day ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। और 5वें दिन क्या हुआ, एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ते हुए आया और ऊपर से कुछ राहत सामग्री, कुछ खाने के पैकेट्स जो हैं मिलिट्री हेलीकॉप्टर ने नीचे गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न, लेकिन बस उसके बाद से फिर कभी भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर वहाँ पर नहीं आया। The youth task force gathered empty utensils from the shelter, then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach to communicate to the passing helicopters that they were hungry. उसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ के बच्चों को कहा कि एक काम करो, आप सब लोग जो हैं लेट जाओ बालू पर और अपने पेट के ऊपर खाली खाली बर्तन रख लो, ताकि ऊपर से कोई भी हेलीकॉप्टर अगर गुजरेगा तो कम से कम वो देख के समझ लेंगे कि अच्छा यहाँ पर लोग भूखे हैं, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो ऐसे हम कम से कम बता सकते हैं कि हम सब भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। और ये मैसेज और ये जो प्लान था प्रशांत का, ये कारगर साबित हुआ और ये खबर हेलीकॉप्टर जो मिलिट्री तक पहुंची, फिर जो है बराबर हेलीकॉप्टर वहां पर आता रहा और ऊपर से जो है राहत सामग्री और भोजन के पार्सल्स जो है वो गिराते रहे। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड एंड प्रशांत ऑल्सो फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड लॉस्ट देयर पेरेंट्स। ऑर्फन्ड मीन्स अनाथ। तो प्रशांत ने ये भी देखा कि बहुत से बच्चे जो है अनाथ हो गए हैं। ही ब्रॉट देम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम। उसने जो है उन सारे बच्चों को इकट्ठा किया और एक अलग एक पॉलीथीन का जो है एक कैंप की तरह बनाया, एक टेंट की तरह बनाया। वुमेन वर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर देम, और जो वहाँ औरतें थी उनसे कहा गया कि आपका काम है कि आप जो है इन बच्चों का क्या करें, ध्यान रखें, इन बच्चों का ख्याल रखें आप। ठीक है, देन वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और जो आदमी लोग थे उनका काम क्या था कि जाकर भोजन की व्यवस्था करना, और औरतों का काम क्या था कि जो बच्चे हैं,
जिन्होंने अपने परिवार खो दिया, अपने बच्चे हैं या किसी और के भी बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उन सबका देखभाल करना. Now in this picture, in these pictures you can see, on your screens, helicopter dropping food parcels, and people literally lying on the sand with utensils on their stomach, then people collecting food parcels, and then children, Prashant taking children, orphans, okay, to a different camp, and women looking after these children, and the men going for food, finding out food and other things. As the weeks passed, Prashant was quick to recognize the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO, and for the children he organized sports events. Now see what happened. जब कुछ हफ्ते बीत गए, प्रशांत ने देखा कि जो उस राहत शिविर में जितनी औरतें और बच्चे वहाँ पर रह रहे थे, वो सब बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, सब बहुत दुखी थे, परेशान थे. ग्रीफ का मतलब होता है बहुत दुखी थे, क्योंकि किसी ने अपने पति को खो दिया, किसी ने अपने माँ बाप को खो दिया, किसी ने अपने बच्चों को खो दिया. तो प्रशांत ने देखा कि अगर इसी तरीके से दुख में ये सब यहाँ पर रहेंगे तो इनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी. तो उसने क्या किया, औरतों को परसुएडेड द वुमेन मतलब औरतों को उन्होंने जो है प्रोत्साहित किया, मनाया कि आप लोग क्या करिए, एक एनजीओ में काम करिए. और एनजीओ कौन सा काम करता था, फूड फॉर वर्क. एनजीओ मतलब क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जो समाज सेवी संस्थाएं जिसे कहा जाता है, हमें एनजीओ उन्हें कहा जाता है. तो आप वहाँ पे भोजन बनाइए, कम से कम आप बिज़ी रहेंगी, आप कुछ काम करेंगी तो आपका दिमाग जो है इधर उधर नहीं जाएगा और आप भूल जाएंगी. क्योंकि आप जब व्यस्त रहेंगी तो व्हाट विल हैपन, इफ़ यू आर बिजी, सो व्हाट विल हैपन, यू वोंट get time to think about other things, okay. And for children he started organizing sports events. He himself loved to play cricket, so he organized cricket matches for children. और बच्चों का ध्यान हटाने के लिए, जो है उनके दुख को दूर करने के लिए, वो क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करते थे ताकि बच्चे जो है क्रिकेट मैच खेलकर अपना दुख भूल जाएं, okay. Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. और प्रशांत बाकी लोग के साथ मिलकर जो है, जो विधवाएं थी, विडोज मीन्स विधवाएं, और जो बच्चे थे जिन्होंने अपना परिवार, अपने प्यारे लोगों को खो दिया है, उन सब की मदद करना शुरू किए. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, एंड दैट टाइम द गवर्नमेंट वॉज लिटरली in a mood to set up an institution for orphans and widows. तो उस समय सरकार ने कहा कि हम एक ऐसी संस्था बनाएंगे जिसमें अनाथ बच्चों को अलग रखा जाएगा और विधवाओं को अलग रखा जाएगा. However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. लेकिन ऐसे जो गवर्नमेंट का प्लान था, इसका विरोध किया प्रशांत ने. प्रशांत का कहना था अगर हम अनाथ बच्चों को अलग रखेंगे और विधवाओं को अलग रखेंगे तो समस्या और बढ़ जाएगी, बच्चों को उनके माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा और जो महिलाएं हैं वो भी अकेले रहेंगी, और साथ ही साथ स्टिग्मा का मतलब कलंक, ठीक है ना. विधवाओं को बहुत ही अलग निगाहों से देखा जाता है समाज में, तो वो जो है हमेशा अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि हम कलंकित हैं और ज़्यादा दुख बढ़ जाएगा. Prashant's group believed orphans should be resettled in their own community itself, possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. But according to प्रशांत के अनुसार ये था कि अनाथ बच्चे और विधवाओं को उन्हीं के आपस में ही जो है उनको मिलकर रखा जाए, एंड दे वुड गेट न्यू फॉस्टर फैमिलीज. फॉस्टर फैमिलीज मतलब क्या हुआ, नया परिवार, ठीक है. और जैसे कहते हैं ना, सौतेला परिवार कह सकते हैं ना. तो अब क्या है कि जो बच्चे अपने माँ बाप खो दिए हैं, उनकी देखभाल कौन करेंगी, वो विधवाएं करेंगी जिन्होंने अपना परिवार, अपने पति को खो दिया है. तो इस तरीके से सब लोग आपस में ही मिलकर रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, कमी नहीं खलेगी. It is 6 months after the devastation of this super cyclone. This time Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain.
His handsome, youthful face is what the widow and orphan children of his village seek out most in the darkest hour of grief. और प्रशांत तो खुद इतना व्यस्त हो गया है दूसरों की सेवा करने में, उसे अपने दर्द के बारे में तो भूल ही गया है, और उसको तो अपनी चिंता भी नहीं है, दूसरों की जख्मों को जो है वो मलहम लगाने में ही उसका समय निकल जा रहा है। और उसका जो चेहरा है वो एक ऐसा चेहरा है कि हर एक विधवा औरत और हर एक अनाथ बच्चा जब भी मुसीबत में रहता था तो वो किसका चेहरा याद करता था? प्रशांत का चेहरा। So Prashant's face would come first of all in their minds, you know. So that was finally the story, you know, the chapter Weathering the Storm of Ersama. I hope you have understood this chapter, a beautiful chapter, and really, you know, hats off to Prashant for his bravery and for his initiative he took. He came forward for the help of, you know, other people, and we salute Prashant for this great work. So that was all from this chapter. I hope, my dear children, you have understood this chapter. Still, if you have any confusion, you can ask me in the comment section. So that was all from today's video. Thank you, take care, and God bless you.